Hello dear students, today quadratic equation. See question first. If the roots of quadratic equation x square minus 4x plus k equal to 0 are real and equal, then the value of k is. So you have to find the value of k by using the quadratic equation x square minus 4x plus k equal to 0, and your options are A 3, B minus 3, C 4 and D minus 4. You have to choose correct alternative out of four options A, B, C and D. Anyone is correct here. So see the solution. Since x square minus 4x plus k equal to 0, so comparing with ax square plus bx plus c equal to 0, therefore a equal to 1 and b equal to minus 4, c equals k. So write down here a equal to 1, b equal to minus 4 and c equal to k. Since the roots are real and equal, then b square minus 4ac equal to 0, or you can say discriminant equal to 0 or delta equal to 0 or d equal to 0. Have four different names. So b square minus 4ac equal to 0. Therefore minus 4 whole square minus 4 into 1 into k equal to 0. So we get here square of this 16 minus 4k equal to 0. Therefore 16 equal to 4k, and now dividing by 4 on both sides we get k equal to 4. So we see that option C is correct. Therefore option C you have to write here, and in your OMR sheet you have to dark the circle for option C. Now see question number 2. If alpha and beta are the roots of equation 3x square plus root 5x plus 2 equal to 0, then the value of alpha plus beta is. You have to find only alpha plus beta, means sum of the roots. Your options are root 5 upon 3, 2 upon 3, minus root 5 upon 3 and minus 3 upon root 5. Now comparing the given equation with ax square plus bx plus c equal to 0. So ax square here 3x square, that is a equal to 3, and bx equal to root of 5x, that is b equal to root 5, and c equal to 2, so c equal to 2, here we have to write. Since alpha plus beta are, you can say, sum of the roots, so alpha plus beta equal to minus b upon a, it is formula. Alpha plus beta equals minus b upon a. So substituting the value of b and a here, we get minus root 5 upon 3. So we see that option C is correct, that is minus root 5 upon 3. Now third question, if alpha and beta are the roots of 2x square minus 5x plus 1 equal to 0, then alpha plus beta upon alpha beta is equal to. So what is the value of alpha plus beta upon alpha beta? Options are 3, 4, 5 and none. So for the solution, since 2x square minus 5x plus 1 equal to 0, comparing with ax square plus bx plus c equal to 0, therefore a equal to 2, b equals minus 5 and c equals 1. So since alpha plus beta upon alpha into beta equals, what is formula for alpha plus beta? Minus b by a, and formula for alpha into beta, c by a. So we see that here a going by a get cancelled. So alpha plus beta upon alpha beta equal to minus b upon c. It is a formula also. So minus b by c. Substituting the value, minus of minus 5 upon 1, that is plus 5 upon 1 becomes 5. So we see that option C is correct. So we should write option C. Now see question number 4. The nature of the roots of the quadratic equation x square minus 2x minus 4 equal to 0 is. अब यहाँ पर हमें बताना है only nature of the roots. जैसा कि हम लोग पहले भी फॉर्मूले में पढ़ चुके हैं कि नेचर ऑफ द रूट्स के लिए हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac और यू कैन से डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर जाना होता है. तो डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर जाने के लिए हमें सबसे पहले इक्वेशन को लिखना होगा, उसके बाद फिर ऑप्शन पर चेक करना होगा. तो योर ऑप्शंस आर रियल एंड इक्वल, रेशनल एंड डिस्टिंक्ट, इमेजनरी और कॉम्प्लेक्स, एंड ऑप्शन डी इरेशनल. मीन्स हमें चेक करके बताना है कि फोर ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है. तो फॉर द सोल्यूशन x square minus 2x minus 4 equal to 0, comparing
with ax square plus bx plus c equal to 0. Therefore, a equals 1 and b equals minus 2, c equal to minus 4. Since delta, that is discriminant, b square minus 4ac and it is equal to minus 2 square, value of b square, and minus 4 into 1 into minus 4. Now this gives 4 plus 16. So therefore delta equal to 0, or you can say b square minus 4ac equal to 20 and it is greater than 0. So delta equal to 20, that is greater than 0, और डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 और डिस्क्रिमिनेंट क्या है अपना 20. सो 20 क्या है पॉजिटिव नंबर एंड इट इज ग्रेटर देन 0. देयरफॉर ऑप्शन बी रेशनल एंड डिस्टिंक्ट. इसी को हम लोग बोलते हैं कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. तो ये भी ऑप्शन चलेगा. इसमें क्या है रियल एंड इक्वल, यहाँ पर है रियल एंड डिस्टिंक्ट या रेशनल एंड डिस्टिंक्ट, दोनों ऑप्शन हो सकता है. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5. If 3 and 4 are the roots of quadratic equation, the quadratic equation is, options are x square minus 7x plus 12 equal to 0 and b x square plus 7x plus 12 equal to 0. Option C x square minus 7x minus 12 equal to 0 and option D x square plus 7x minus 12 equal to 0. Now see the solution. Since 3 and 4 are the roots, then x minus 3 and x minus 4 are factors of the required quadratic equation. Since x minus 3 into x minus 4 equals x square, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12, दैट इज x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12. Therefore, quadratic equation is x square minus 7x plus 12 equal to 0. Therefore, option A is correct. तो ऑप्शन A पर हम लोग यहाँ पर टिक करेंगे और उसी को सर्कल को डार्क करेंगे. तो ऑप्शन A, दिस वन, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0. तो ये ऑप्शन हमें यहाँ पर चूज करना है. और इसका दूसरा भी मेथड है. जैसे हम लोग फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर जाएंगे तो मेथड थोड़ा सा लेंदी होगा. इट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सो यू शुड फॉलो ऑलवेज ट्रिक्स और शॉर्टकट्स. तो दूसरे मेथड के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0. तो वहां से भी हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा इजिली. तो उसके लिए फार्मूले की जरूरत है और यहाँ पर डायरेक्टली हम दोनों को फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नो नीड टू यूज द फार्मूला हियर. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6. इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 आर रियल एंड अनइक्वल, देन which option is correct? So A is option A, k is greater than 9 by 8, k is less than 9 by 8, C k is less than minus 9 by 8 and D k is less than minus 8 upon 9. तो चलो देखते हैं which option is correct. For the solution, since kx square plus 3x plus 2 equal to 0, comparing with ax square plus bx plus c equal to 0, in all the questions wherever you have to compare, we should compare by ax square plus bx plus c equal to 0. So directly you can say a equal to k, b equal to 3 and c equal to 2. For real and unequal roots, we know that discriminant is greater than 0. जैसा कि अभी क्वेश्चन नंबर 5 में हमें मिला, discriminant greater than 0, then roots are real and unequal या rational and distinct या real and distinct. तो यहाँ पर भी है real and unequal, therefore b square minus 4ac greater than 0. So therefore square of 3 minus 4 into k into 2 greater than 0. Therefore 9 minus 8k greater than 0. So 9 is greater than 8k, taking 8k on the right hand side. Therefore 9 dividing by 8 on both sides we get 9 upon 8 is greater than k. तो हम लोग क्या करेंगे, हमें k के फॉर्म में फाइंड करना है. तो अगर इसको हम रिवर्स करते हैं तो k is less than 9 by 8. दैट इज ऑप्शन B is correct. तो हमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पर चॉइस करना चाहिए, ऑप्शन B, k is less than 9 by 8. तब ये क्या होगा, ये इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे कि इज लेस देन 9 बाई 8, उसके लिए हमें मिलेगा रियल एंड अनइक्वल रूट्स. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7. द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज 20 इफ वन नंबर इज 8 लेस देन द अदर, द स्मॉलर नंबर इज. अभी ध्यान देना है कि यू हैव टू फाइंड स्मॉलर नंबर ओनली. तो फॉर द सोल्यूशन लेट द नंबर्स बी x एंड x माइनस 8, क्योंकि उसमें डिफरेंस कितने का है, 8 का. तो x एंड x माइनस 8 आर नंबर्स एंड देयर प्रोडक्ट x इंटू x माइनस 8 इक्वल टू 20.
Therefore x square minus 8x minus 20 equal to 0. Now splitting the middle term, we get x square minus 10x plus 2x minus 20 equal to 0. Therefore x common, x into x minus 10, and here plus 2 common, so 2 into x minus 10 equal to 0. Therefore x minus 10 into x plus 2 equal to 0. So either x equal to 10 or x equal to minus 2. So as x is not equal to minus 2 here, therefore the numbers are, so bigger number is 10, but we need to find a smaller number. तो इसमें ये है बिगर नंबर अपना x और स्मॉलर नंबर क्या है x minus 8. Therefore smaller number is 10 minus 8 because of x minus 8. So value of x is 10. So 10 minus 8 becomes 2. Therefore option A is correct. तो हमें ऑप्शन A पर चलना चाहिए which is 2. Now see question number 8. If alpha and beta are the roots of equation x square plus 5x minus 1 equal to 0, then alpha square plus beta square is. हाँ, ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो स्टूडेंट को बहुत ही कंफ्यूजन होता है कि हाउ टू फाइंड अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर. ऑप्शन 25, 27, माइनस 25 एंड माइनस 27. तो बहुत ही क्लोज ऑप्शन दे दिए गए हैं. अभी बहुत ध्यान देना है कि इसमें कोई भी साइन का भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए. So since x square plus 5x minus 1 equal to 0, comparing this equation with x square plus bx plus c equal to 0, we get a equals 1, b equals 5, c equal to minus 1. Since alpha plus beta equal to minus b upon a, and it is equal to minus 5 upon 1 equals minus 5. Alpha into beta, c by a, it is formula. So it is minus 1 upon 1, that is minus 1. Since alpha square plus beta square equal to alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta, it is an identity or you can say formula. So it is square of minus 5 and the value of alpha beta is minus 1, so minus 2 into minus 1. Now this gives 25 plus 2 equal to 27. Therefore option B is correct. So option B यहाँ पर मैंने लिख दिया है. Therefore option B is correct option. Now see question number 9th. The sum of squares of two consecutive even natural numbers is 244, then the numbers are. तो यहाँ पर हमें दे दिया गया कि the sum of squares of two consecutive even natural numbers is 244. तो हमें अब इस क्वेश्चन को क्या करना है सबसे पहले, तो सबसे पहले तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं 10, 12, 10, 14, 12, 12 एंड 9. तो एक तो ये भी है कि हम लोग इसके ऑप्शन टू क्वेश्चन भी जा सकते हैं. ये इन जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें से हम दोनों नंबर का स्क्वायर करके प्लस करें. स्क्वायरिंग एंड एडिंग both the numbers which are given in option, if we get 244, so that option is correct. Okay, it is first trick and shortcut. You can get your answer very fast. For example, square of 10 is 100 and square of 12 is 144. So 100 plus 144 becomes 244. So option A is correct. So you can guess your option within a few seconds. But for the solution, let x and x plus 2 be two numbers, or you can say be two even numbers. Therefore, sum of squares, so x square plus x plus 2 whole square equal to 244. क्योंकि यहाँ पर x क्या होती है इवन. ऐसा अगर यहाँ लिखोगे let x and x plus 2 be two numbers, two even numbers where x is an even number, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट होगा. क्योंकि ये शॉर्टकट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं, इसके लिए इनको जितना भी शॉर्टकट हो सके उतने में सॉल्व करो. So sum of squares is 244. So x square plus x plus 2 whole square equal to 244. Therefore x square plus, expand it, x square plus 4x plus 4 equal to 244. Therefore 2x square plus 4x minus 240 equal to 0, because 4 minus 244 becomes minus 240. Now dividing by 2 on both sides, we get x square plus 2x minus 120 equal to 0. Now factorize minus 120, whose difference is plus 2. So we have factors 12 and minus 10. So therefore x square plus 12x minus 10x minus 120 equal to 0. Now taking common, x plus 12 and x minus 10 are factors equal to 0. Therefore either x equal to 10 or x equal to minus 12. But x equal to minus 12 does not exist in the positive natural number or natural number. So x equal to 10. Therefore numbers are, देखो x is 10, then another number is 10 plus 2, that is numbers are
10 and 12. So we should select our option 10 and 12. Easily you can guess. तो मैंने दोनों मेथड यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। एक मेथड तो है फ्रॉम ऑप्शन, तो ऑप्शन में जो भी नंबर दिए हैं उनका स्क्वायर करके ऐड कर लो। अगर हमका उनका ऐड करके एडिंग करके उनका सम 244 मिल जाता है, मीन्स दैट ऑप्शन इज करेक्ट। और इन केस 244 नहीं आता और सभी ऑप्शंस गेस करने में टाइम जा रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, सोल्यूशन पर जाना चाहिए। और सोल्यूशन भी इतना लेंदी नहीं है कि बहुत टाइम लगेगा। विद इन अ मिनट यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। और हाँ, एक चीज और, अभी जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर न्यू ज्वाइन किए हैं, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड देन कंटिन्यू, जिससे हमारे सभी आने वाले वीडियोस और ट्रिक्स जो भी हैं, फार्मूला लिस्ट, वो सभी इमीडिएटली मिलते जाएंगे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10। The difference between the roots of the equation x square minus 13x plus k equal to 0 is 7, then k is, अब यहाँ पर देखो, the difference between the roots of the equation x square minus 13x plus k equal to 0 is 7. Your options are 20, minus 30, 30 and 40. For the solution x square minus 13x plus k equal to 0, this is given quadratic equation. Comparing with x square plus bx plus c equal to 0, so we get a equal to 1, b equals minus 13 and c equal to k. तो इमीडिएटली क्या करना है, हमें सबसे पहले ये फार्मूला अप्लाई कर देना है कि व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, मीन सम ऑफ द रूट। तो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए, इट इज फार्मूला, इट इज माइनस ऑफ माइनस 13 अपॉन 1 इक्वल टू 13। It is given that alpha minus beta is 7. So we have two equations, alpha plus beta and alpha plus beta equal to 13, first equation, and alpha minus beta equal to 7. So adding these two equations, we get alpha plus beta equal to 13 and alpha minus beta equal to 7. Adding plus beta minus beta get cancelled. So 2 alpha equal to, here 13 plus 7, that is 20. So 2 alpha equals 20, therefore alpha equal to 10. Since alpha is 10 but alpha plus beta is 13, therefore 10 plus beta equal to 13, substituting the value of alpha. This implies that beta equal to 13 minus 10, that is 3. So beta is 3, alpha is 10. Now we need to find value of k. Since alpha into beta equals c upon a, so here alpha into beta, that is 10 into 3, values of alpha and beta. Value of c is k and value of a is 1. So 10 into 3 equals k upon 1. This implies that k equals 30. So हमें कौन सा ऑप्शन गेस करना चाहिए, k equals प्लस 30, क्योंकि देखो माइनस 30 भी दिया है और प्लस 30 भी दिया है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो वी शुड राइट ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। इफ वन रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2 प्लस रूट 5 देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। अब ऐसे क्वेश्चन में बहुत ही कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को कि ओनली वन रूट इज गिवन, और वो भी कैसा रूट दिया है, इरेशनल 2 प्लस रूट 5। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे मिलेगा, बहुत ही डाउट होता है स्टूडेंट को इसमें कि ओनली 2 प्लस रूट 5 इज गिवन, हाउ टू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ सी द मेथड, और उसके पहले हम लोग देख लेते हैं ऑप्शंस। ए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, b x square plus 4x minus 1 equal to 0, and it's c x square plus 4x plus 3 equal to 0, and d x square minus 4x minus 1 equal to 0. तो इट हैज टू मेथड्स, एक तो मैंने जो अभी यहाँ पर सॉल्व करके बताया हूँ, एक ये मेथड है, और दूसरा मेथड है कि जितने भी इक्वेशंस यहाँ पर गिवन है उन सबको फार्मूला मेथड से सॉल्व करके देखा जाए, तो जिसमें भी ये 2 प्लस रूट 5 आ जाएगा, दैट इक्वेशन इज करेक्ट। तो चलो देखते हैं इसका प्रॉपर मेथड क्या है और फार्मूला मेथड क्या है। सिंस वन रूट इक्वल्स 2 प्लस रूट 5, देयरफॉर अनदर रूट इज 2 माइनस रूट 5, इनको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट रूट्स। तो ये कॉन्जुगेट रूट्स आ गए 2 प्लस रूट 5 एंड 2 माइनस रूट 5, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट भी बोल सकते हो या कॉन्जुगेट रूट्स। तो 2 प्लस रूट 5, देन अनदर रूट इज 2 माइनस रूट 5, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, तो इसका फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। सम दैट इज अल्फा प्लस बीटा, अगर इनको हम लोग अल्फा एंड बीटा लेते हैं तो अल्फा और ये बीटा है, तो अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, ये सम हो गया यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट क्या होगा अल्फा इंटू बीटा। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया है,
कि एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ देखो प्लस रूट फाइव माइनस रूट फाइव गेट कैंसल्ड, 2 प्लस 2 becomes 4 that is 4x, and here a plus b into a minus b that is 4 minus 5, a square minus b square हो जाएगा। तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 5 इक्वल टू 0। Therefore x square minus 4x minus 1 equal to 0, which is option D। तो ऑप्शन डी में हमें मिला एक्स स्क्वायर माइनस 4x minus 1 equal to 0। Now see question number 12. If one root of the equation x square plus 6mx plus 64 equal to 0 is the square of the other, then value of m is। तो यहाँ पर हमें वैल्यू ऑफ m फाइंड करनी है, एंड इट इज गिवन दैट वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज स्क्वायर ऑफ द अदर। मीन्स एक रूट अल्फा है तो दूसरा इसका रूट क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर, या पहला अल्फा स्क्वायर है तो अनदर रूट इज अल्फा, कोई भी ले सकते हो। बट ऑप्शंस आर हियर 5/3, 8/3, 10/3 एंड नन। तो देखते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट। सिंस एक्स स्क्वायर प्लस 6mx प्लस 64 इक्वल टू 0, x square plus 6mx plus 64 equal to 0, comparing with ax square plus bx plus c equal to 0, we get a equal to 1, b equals 6m and c equals 64। Let alpha and alpha square be the roots। तो sum of the roots just जैसा कि मैंने अभी फार्मूला बताया अल्फा प्लस बीटा, ठीक उसी फॉर्मेट में है। तो यहाँ पर सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी दैट इज माइनस 6m अपॉन 1, ए का वैल्यू क्या है 1। तो अल्फा प्लस बीटा के ही फॉर्मूले से हो रहा है भी, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए, लिख सकते हो। तो इट इज इक्वल टू माइनस 6m एंड लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। So we get alpha plus alpha square equal to minus 6m। We need to find the value of m। तो आगे भी इनका प्रोडक्ट क्या है, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 64 अपॉन ए, यही होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, दैट इज अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 64 अपॉन 1। तो अल्फा क्यूब इक्वल टू 64। तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स वी गेट अल्फा इक्वल टू 4, क्योंकि ये किसका क्यूब है 4 क्यूब। तो अल्फा क्यूब इक्वल टू 4 क्यूब दैट इज अल्फा इक्वल टू 4। तो अल्फा इक्वल टू 4 मिल गया तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 4 प्लस 4 स्क्वायर बिकॉज ऑफ हियर अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, तो 4 प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू माइनस 6m दिस साइड। तो 4 as it is plus 16 that is 4 plus 16 becomes 20। So 20 equals minus 6m, therefore m equals 20 upon minus 6। तो इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो विच इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 3। इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिलेगा माइनस 10 अपॉन 3। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ऑप्शन डी एक बार वापस चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन माइनस 10/3। तो अब माइनस यहाँ पर 10/3 कोई भी ऑप्शन में नहीं है, देखो 5/3 है, 8/3 है एंड 10/3 है, और यहाँ डी क्या है नन। तो हमारा आंसर मिला माइनस 10/3। तो नॉट प्रेजेंट माइनस 10/3 इन ए बी एंड सी, देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इस तरह से हमें आंसर तो मिला लेकिन यहाँ पर है माइनस 10/3 और ये ऑप्शन में नहीं दिया है, तो ऑप्शन डी पर हम लोग जाएंगे विच इज नन। Now 13th, if the roots of equation b minus c into x square plus c minus a into x plus a minus b equal to 0 is 1, then other root is। ठीक है, तो ऐसे जो है अपने 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं सीईटी में, 11th स्टैंडर्ड एडमिशन के लिए जो सीईटी होगा उसमें 25 क्वेश्चंस आएंगे। तो ऐसे कम से कम जो क्वेश्चन का लेवल है 10% क्वेश्चन इस टाइप के भी उसमें हो सकते हैं, जिसके लिए इस टाइप के भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सभी इजी लेवल होगा या मीडियम लेवल होगा, सम हार्ड लेवल, थोड़े से हार्ड लेवल डिफिकल्ट लेवल भी क्वेश्चन का होगा, इसलिए मैंने सभी टाइप्स के क्वेश्चंस को इंक्लूड कर दिया है। Now see, for the solution first we should check the option A1 b minus a upon b minus c, and option C a minus b upon b minus c, option D minus 1। तो देखते हैं आउट ऑफ 4 ऑप्शंस कौन सा करेक्ट है। सिंस b minus c into x square plus c minus a into x plus a minus b equal to 0, comparing with ax square plus bx plus c equal to 0,
तो हम कंपेयर के लिए जो अपना इक्वेशन में ABC रखेंगे उसको कैपिटल लेटर्स यूज कर लेते हैं, राइट, बिकॉज स्मॉल लेटर्स आर गिवन ऑलरेडी इन द क्वेश्चन. So therefore A equal to B minus C and B equal to C minus A and C equal to A minus B. Let alpha and beta be roots. Let alpha equal to 1, क्योंकि इसमें दे दिया है कि if the roots of quadratic equation this is 1, तो एक रूट इसमें से अज्यूम कर लेते हैं कि एक रूट 1 है तो अनदर रूट क्या होगा. तो इसमें से अल्फा को 1 अज्यूम कर लिया, तो प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए. इट इज फार्मूला. तो वैल्यू ऑफ सी हियर ए माइनस बी एंड वैल्यू ऑफ ए इज बी माइनस सी. तो ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी. दिस इज 1 इंटू बीटा इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी. तो 1 इंटू बीटा इज बीटा ओनली. So this implies that beta equals a minus b upon b minus c. Therefore, option C is correct. कौन सा ऑप्शन रखना है? C. A minus b upon b minus c. So if one root is 1, then another root is b minus c upon, sorry, another root is a minus b upon b minus c. तो यहाँ पर अनदर रूट इस तरह से फाइंड कर सकते हो. ऐसा जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसी टाइप के दूसरे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, बट सॉल्यूशन प्रोसेस और मेथड विल बी सेम. तो इस तरह से उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो, कोई भी डाउट नहीं होगा. इजिली यू कैन सॉल्व विद इन फ्यू सेकेंड्स, क्योंकि देखो हमारे पास टाइम नहीं होगा, 2 आवर्स का पेपर है और दैट इज 120 मिनट्स, और हमारे सामने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 100. 25 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश एंड सोशल. तो इस तरह से हम लोगों को अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूशन भी देखते रहना पड़ेगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैथ्स में देना पड़ेगा और उसके बाद फिर साइंस और फिर इंग्लिश एंड सोशल, क्योंकि उसमें सोल्यूशन नहीं है, उसमें जस्ट थिंक एंड सॉल्व. और मैथ्स और साइंस में सोल्यूशन की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो वहाँ पर टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा. इसके लिए मैथ्स के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा मैनेज करना पड़ेगा. तो इस तरह से ट्रिक्स फॉलो करो कि टाइम बच जाए, कम ना पड़े. सी 14th क्वेश्चन, इफ 5x स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 7 देन रूट्स आर. अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर रूट्स हैं 2 प्लस माइनस रूट 39 अपॉन 5, बी 2 प्लस माइनस रूट 156 अपॉन 5, एंड हियर 2 प्लस माइनस रूट 29 अपॉन 5, एंड ऑप्शन डी 4 प्लस माइनस रूट 39 अपॉन 5. तो इस तरह से हमारे जो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, ये सभी ऑप्शंस क्या हैं, फार्मूला बेस्ड हैं. तो हम लोग चेक करके देखते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है और किस फार्मूले से आएगा. तो सबसे पहले तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. सिंस 5x स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 7 कैन बी रिटन एज 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 इक्वल टू 0. ये रहा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 इक्वल टू 0. Therefore, a equal to 5 and b equal to minus 4 and c equal to minus 7. जैसा कि हमें पता है कि हमें कंपेयरिंग किससे करना होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. तो वी गेट a equal to 5, b equal to minus 4 and c equal to minus 7. Since x equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac entire upon 2a. This is formula. इसी को हम लोग बोलते हैं कि फार्मूला मेथड. ये किसके लिए है, सॉल्व a quadratic equation by using formula. So this formula is given by Indian mathematician श्रीधराचार्य, और इसीलिए हम लोग इसको श्रीधराचार्य फार्मूला या श्रीधराचार्य रूल भी बोलते हैं. Now substituting the value, since x equals minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a, therefore x equals minus of minus 4 plus minus b square, that is 16 minus 4 into 5 into minus 7 upon 2 into a, that is 2 into 5. So we get here minus of minus, that is plus 4 plus minus square root of here 16 and here minus minus plus, that is 4 5 are 20 into 7, that is 140. So 16 plus 140 becomes 156 entire upon 10. तो टेकिंग, अब देखो यहाँ पर है 4 इंटू 39, ये क्या है 4 इंटू 39. तो 39 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कर लेते हैं और टेकिंग 2 कॉमन. तो 2 कॉमन करने के बाद हमें मिलेगा 2 इंटू 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 39 अपॉन 10. तो हियर 2 5 जा 10. तो हमें फाइनल ऑप्शन क्या मिलता है, देयरफॉर x इक्वल्स 2 प्लस माइनस रूट 39 अपॉन 5. देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट. जैसा कि यहाँ पर चेक कर सकते हो,
2 प्लस माइनस रूट 39 अपॉन 5, 2 प्लस माइनस रूट 39 अपॉन 5, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर यहाँ पर फिर से देखना है, एक बार वापस देख सकते हो, 4 प्लस माइनस, इसको हम लोग क्या लिखेंगे इन द स्क्वायर रूट, 4 इंटू 39, तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस 2 रूट 39 अपॉन 10। तो टेकिंग 2 कॉमन वी गेट हियर 2, 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 39, क्योंकि यहाँ 2 था, अब ये 2 कॉमन हो गया, तो 2 प्लस माइनस रूट 39 अपॉन 10, और इस 2 से इसको कट करना है, 2 5 जा 10, ऐसा नहीं कि इस 2 से, इसके लिए यहाँ कॉमन करके दिखा दिया हूँ, 2 5 जा 10, तो वी गेट x इक्वल्स 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 39 अपॉन 5, देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो हमें ऑप्शन ए जो कि अपने OMR सीट में रहेगा तो उसी को डार्क करना है, क्योंकि हमें सर्कल को यहाँ पर डार्क करना है। अगर कंप्यूटर बेस्ड रहेगा तो सिर्फ इसको क्लिक करना पड़ेगा, विच ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 15। प्रोडक्ट ऑफ Rahim's age 2 years ago and 3 years hence is 84. Then present age of Rahim is। अब देखो यहाँ पर रहीम का एज कैसा यहाँ पर दिया है कि रहीम्स एज 2 years ago and 3 years hence, मीन्स 2 years ago and 3 years after, जो भी रहीम का एज पहले था और जो भी होगा उनका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके आता है 84। तो एट प्रेजेंट रहीम कितने ईयर्स का है, हाउ ओल्ड रहीम इज नाउ। तो इस सोल्यूशन को देखने के लिए बहुत ही केयरफुली देखो, क्योंकि एज प्रॉब्लम्स भी आते हैं और ये वर्ड प्रॉब्लम में इंक्लूडेड है। तो सोल्यूशन, लेट रहीम्स प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। तो 2 years ago रहीम्स एज x minus 2 years and 3 years hence Rahim's is equal to x plus 3। देखो 2 years ago Rahim was x minus 2 years and after 3 years Rahim will be x plus 3 years। According to the question, product of these two terms means x minus 2 into x plus 3 equals 84। So we can say x minus 2 into x plus 3 equals 84, therefore x square प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 84। इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखो यहाँ पर आता है एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x एंड माइनस 6, तो माइनस 2x प्लस 3x बिकम्स प्लस x, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 84। नाउ टेकिंग 84 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 10x minus 9x minus 90 equal to 0, splitting the middle term, so 10 and plus 10 and minus 9 are factors, therefore x into x plus 10 minus 9 into x plus 10 equal to 0, therefore x plus 10 into x minus 9 equal to 0, so therefore x equal to minus 10 or x equal to 9, but age cannot be negative, therefore x is not equal to minus 10, therefore x equal to 9 years, therefore Rahim's present age equal to 9 years, therefore option B is correct। So you can check your option, तो ऑप्शन बी में यहाँ पर क्या गिवन है 9, तो ऑप्शन बी दैट इज 9 years। तो रहीम्स प्रेजेंट एज इज 9 years। तो अभी प्रेजेंटली देखो कितने का है 9 years का है, तो बिफोर 2 years अगर हम लोग सपोज कर लो कि हम स्टेटमेंट को वेरीफाई भी करके चेक करना चाहते हैं, तो 9 माइनस 2 बिफोर 2 years कितने का रहा होगा, रहेगा वो था तो 7 years का, और आफ्टर 3 years रहीम विल बी 9 प्लस 3 दैट इज 12, तो 2 years पहले रहीम की एज थी 7 और 3 years के बाद कितनी हो जाएगी 12, तो 7 इंटू 12 करोगे तो क्या मिलेगा 84। ये देखो यहाँ पर दिया है कि रहीम का एज जो है वो 84 मिल जाएगा, तो इस तरह से हमें प्रोडक्ट करके 84 वेरीफाई हो जाता है, हेंस रहीम्स प्रेजेंट एज 9 years, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरह से आज की 15 क्वेश्चन, जो टॉप 15 क्वेश्चंस फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मैं प्रोवाइड कर रहा हूं फॉर ऑल चैप्टर्स, ये मिल जाएगा, और इसी तरह से टॉप 15 क्वेश्चंस फॉर द रिमेनिंग चैप्टर्स देखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोस। थैंक यू।